All right, let's get into the word now. आइए हम वचन में बढ़ते हैं. Yes, let's go now. Let's turn our Bibles to the book of Joshua, chapter 3 and verse 1. आइए हम अपने बाइबल को यहोशू की तीसरे अध्याय उसके पहले आयत में जाएंगे. Joshua chapter 3 and verse 1. यहोशू तीसरा अध्याय पहला आयत. And it says, Joshua rose early in the morning. और बाइबल ऐसा कहता है कि यहोशू बहुत सवेरे उठा. And they came to Jordan. और वो यरदन के पास आए. He and the children of Israel. वो और इज़राइल के सारे बच्चे. And they lodged there before they passed over. One translation says before they crossed over. और बाइबल ऐसा कहता है कि वो कुछ करने से पहले वो एक जगह पर आकर खड़े हो गए. I wanted somebody to say cross over. हम चाहते कि आप किसी व्यक्ति से कहें कि क्रॉस ओवर. What is a crossover? ये क्रॉस ओवर क्या होता A है? crossover is something that you cross across to the other side. एक क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि आप इस पार से उस पार जाते हो. Let me give you an example. उदाहरण के तौर पर You are crossing from one bank to another bank. There's a river in the middle. It's called a crossover. अब ये नदी के इस तरफ से नदी के उस पार जाते उसे कहते हैं क्रॉस ओवर. So you see, one day और एक दिन Jesus told his disciples यीशु ने अपने चेलों से कहा in Mark chapter 4 and verse 35. मरकुस चौथे अध्याय उसके 35वीं आयत में Jesus said, यीशु ने कहा let us cross over to the other side. और वचन ऐसा कहता उसने यीशु ने चेलों से कहा आओ हम पार चले. Let us cross over to the other side. ऐसा कहता कि आओ हम उस पार चले. And Jesus took his disciples from one end of the bank to the other end of the और place. देखो यहाँ पर यीशु ने नदी के इस पार से लेकर दूसरे पार अपने चेलों को लेके गया. Now please understand this. अब इसे ध्यान से This सुनिए. is a physical crossover. और ये शारीरिक रूप से हम ऐसे पार करते हैं. But there is also a spiritual crossover. देखो आत्मिक पार करना भी है. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. Every year हर साल there is a crossover. एक हमें क्रॉस ओवर करना पड़ता है. We cross over from the old year into the new year. हम पुराने साल से नए साल में कदम रखते हैं. And tomorrow, और कल 31st of December 2022, 31 दिसंबर 2022 it's going to be history. वो इतिहास हो And जाएगा. we are going to cross over into 2023. और हम 2023 में कदम रखेंगे. So you see, it's a crossover. तो यहाँ पर देखिए इसे क्रॉस ओवर या पार करना कहते There हैं. is a spiritual aspect to this crossover. और देखो और इस घटना में एक आध्यात्मिक पहलू है. एक आत्मिक पहलू है. अब many people they don't understand this. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते So हैं. they spend the night partying. और देखो रात को जो है पार्टी मनाते हैं. They are going here and there. वो यहाँ वहाँ जाते They are हैं. traveling, having fun. वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और मजा मस्ती करते हैं. Yes, they don't understand the significance of the crossover. और देखो ये क्रॉस ओवर का महत्व उन्हें नहीं पता होता So है. you that are joining, you that are listening, और जो आप हमसे जुड़े हुए जो हमें सुन रहे हैं. I believe the Holy Spirit is speaking to you. और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा See, है. God, He's adding one more year to your life. देखो परमेश्वर आपके जीवन में एक और साल जोड़ रहा है. It's not because we are special. ये एक इसलिए नहीं क्योंकि हम खास हैं. It's because it's the mercy and the favor of God. ये इसलिए होता है कि परमेश्वर की दया होती है इस कारण से. You and I don't decide it. और आप और हम इसका निर्णय नहीं But ले God सकते. decides it. लेकिन परमेश्वर इसका निर्णय He लेता है. decides that you cross over from one year to another year. और देखो परमेश्वर निर्णय लेता है कि आप एक साल से दूसरे साल में कदम रखें. So this crossover is so important spiritually. और देखो आत्मिक रूप से ये क्रॉस ओवर या पार करना बहुत जरूरी है. The second thing, दूसरी बात listen carefully. ध्यान से सुनिए. If you understand the significance of this crossover, और इस क्रॉस ओवर का महत्वपूर्ण आपको पता चलेगा. you will prepare yourself. तो आप अपने आप को तैयार You will करोगे. prepare yourself properly. अपने आप को आप सही रीति से तैयार करोगे. Otherwise, नहीं तो people cross over. They are crossing from one place to another without any revelation. देखो लोग जो है एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं बिना किसी प्रकटीकरण के. Please understand this. इसे समझिए आप. The Israelites, they crossed over from one place to the promised land. और देखो इजरायली लोग जो तो एक स्थान से जो प्रतिज्ञा की भूमि में वो पार चले They गए. were crossing from a low level into a higher level. देखो निचली स्तर से लेकर वो ऊपरी स्तर तक जा रहे थे. That's called a true crossover. और इसे कहते हैं सच्चा क्रॉस ओवर. How many of you understanding right now? कितने लोग समझ रहे So हैं? you see, the rapture is also a type of a crossover. और देखो ये रैप्चर या उठा लिया जाना भी एक प्रकार का क्रॉस ओवर है. You see, Elijah crossed over from the physical into the spiritual realm. देखो जो अलिया था उसको शारीरिक रूप से आत्मिक रूप में उठा लिया गया. Enoch crossed over from the physical realm into the spiritual realm. जो इनोक था उसे भी शारीरिक रूप से आत्मिक रूप में उठा लिया गया. In the same way, उसी प्रकार the से Holy Spirit is going to snatch the church
transform us from the physical into the spiritual. उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमें ये उठा लिए जाने में शारीरिक रूप से आत्मिक रूप में ले जाएगा। It's a spiritual crossover. और देखो ये आत्मिक क्रॉसओवर होता है। You are not crossing from low to low, आप देखो नीचे से आप नीचे की ओर नहीं जा रहे हो। You are crossing from low to high. Somebody shout आप नीचे hallelujah. से लेकर ऊपरी स्तर पर जा रहे हो, कोई तो कहे Come हालेलुया। on, is this blessing you right now? अगर ये आपको आशीष दे रहा है So let me come to the second part of my message. तो आइए हमारे संदेश के दूसरे भाग में हम जाएंगे। So how do you prepare for the तो crossover? आप इस क्रॉसओवर के लिए कैसे अपने आप को तैयार Unlike करें? the people of the world, जो संसार के लोग हैं, उनके विपरीत हम उनके जैसा नहीं बनना चाहते हैं. So how do we prepare? तो हम कैसे अपने आप को तैयार You see, करें? Joshua told the people of Israel. यहोशू ने इजराइल के लोगों से कहा, उसने कहा, He said, we are about to cross over. देखो हम उस पार जाने वाले हैं। Sanctify yourself. अपने आप को पवित्र करो। I'm just making it short so that it will be easy for you to understand. देखो मैं बहुत ही छोटा करो ताकि आप लोगों को साधारण रूप से समझा सकूं। He said, sanctify yourself. उस यहोशू ने कहा कि अपने आप को पवित्र करो। And they sanctified themselves. और सारे इजरायलियों ने अपने आप को पवित्र किया। The process of sanctification is to purify yourself. देखो ये पवित्रीकरण या शुद्धिकरण का जो चीज है वो हम अपने आप को पवित्र या शुद्ध करते हैं। One of the ways एक तरीका you can sanctify yourself जो आप अपने आप को पवित्र कर सकते is हो through prayer and fasting. वो प्रार्थना और उपवास के जरिए है। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। You sanctify yourselves with prayer and fasting. आप अपने आप को प्रार्थना और उपवास के द्वारा पवित्र करते हो। You sanctify yourself आप अपने आप को पवित्र करते हो through the blood of Jesus, यीशु के लहू के through द्वारा, the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Tomorrow कल we have one day before we cross over. हमारे पास एक दिन शेष रह गया क्रॉस ओवर करने से पहले। So tomorrow's day, if you can spend it in prayer, तो कल का दिन अगर आप प्रार्थना में बिता सके, spend time as much as you can in prayer, जितना समय आप प्रार्थना में बिता सकते बिताइए, and prepare yourself to cross over into 2023. और अपने आप को तैयार करें ताकि आप 2023 के साल में कदम रख सकें। We are on a 21-day fast. देखो हम 21 दिन के उपवास के सत्र And में हैं, tomorrow is the 20th day of the fast. और कल जो है 20वां दिन है उपवास का, And on 1st of January, we have the 21st day of the fast. और 1 जनवरी को हमारा 21वां दिन होगा उपवास So का। you see, you cross over and you welcome the new year with fasting and prayer. और देखो आप यहाँ पर क्रॉस ओवर करते हैं और नए साल में कदम रखते हैं, So this is so important. और ये बहुत ही खास है। So why not you join us with fasting and prayer tomorrow? तो कल के दिन क्यों नहीं आप हमारे संग प्रार्थना उपवास में जुड़ जाएं, And you are sanctifying yourself. और आप अपने आप को शुद्ध करते हो। Listen, this is so powerful. और ये बहुत बहुत सामर्थ्यशाली है। Jesus said, यीशु ने कहा I sanctify myself. कि मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। Anyone that God used, जिस किसी को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, that person sanctified himself. उस व्यक्ति ने अपने आप को शुद्ध या पवित्र किया। You see, God sanctified that person. परमेश्वर ने उस व्यक्ति को शुद्ध किया, But you have to make yourself available. लेकिन आपको अपने आप के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध रखना So है। will you make yourself available? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध रखोगे? Is lift your hand and say, Lord, I'm available. अपने हाथ उठा रखे कि परमेश्वर मैं उपलब्ध I हूँ। allow you to sanctify me. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शुद्ध करें। I ask you to sanctify me. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शुद्ध करें, And God is going to sanctify you. और परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. कोई तो कहे The हालेलुया। Bible says it is the will of God that you are sanctified. बाइबल कहता है कि परमेश्वर की इच्छा कि आप शुद्ध किए जाओ। It's His will that we receive this sanctification. ये उसकी इच्छा है ताकि हम शुद्ध किए जाएं। Now let me go to the third part of my message. आइए संदेश के तीसरे भाग में This जाएंगे। is so important. ये बहुत ही जरूरी है। So I want you to just don't get distracted. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ भटक न जाएं, And now we're going to pray. और हम प्रार्थना करेंगे। There was a great man of God एक महान परमेश्वर के जन थे in the 20th century. 20वीं सदी में। His name was A.A. Allen. उनका नाम था A.A. एलन जी। This great man of God. ये परमेश्वर के जो महान God used him so powerfully. परमेश्वर ने महान रीति से इनका इस्तेमाल किया। But do you know, there was a time in his life उनके जीवन में एक ऐसा समय था when he said to God, उन्होंने परमेश्वर से कहा, God, you gave me so many promises. परमेश्वर तूने मुझे इतने सारे वचन दिए, But why are those promises not working in my life? लेकिन वो प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रही? Why is the power of God not operating in my life? परमेश्वर आपकी सामर्थ मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर Today रही? God is answering your question. आज परमेश्वर आपके प्रश्नों का जवाब Why दे am रहा I है। not seeing the Lord work in my life? क्यों मैं नहीं देख रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है? And one day he goes on a fast. और एक दिन वो उपवास के सत्र में जाता And है, during that fast, और उस उपवास के समय God shows him 13 things. परमेश्वर ने उसे 13 चीजें बताई। 1 and 3, 13 things. 13 बातें परमेश्वर ने उसे बताई, And God said to him, और परमेश्वर ने उसे कहा, start dealing with those things. इन सारी चीजों के साथ में अपने आप को उसमें कार्य Start करना है। dealing with those things every day, one by one. एक एक करके हर एक जो
बातें मैंने बताई उसके ऊपर आपको कार्य करना And है। as he started praying, as he started seeking the Lord, as he started telling the Lord to sanctify himself from these things, और जैसे प्रतिदिन उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप मुझे इन बातों से शुद्ध करते रहो, he saw the power of God operating more and more in his life. उन्होंने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में और महान रीति से कार्य करने लगी। He wrote a book उन्होंने एक पुस्तक लिखी called the 12 things, he wrote a book, The Price of God's Miracle Working Power. उन्होंने पुस्तक लिखा द प्राइस ऑफ गॉड्स मिरेकल वर्किंग पावर, In that he mentions these 12 things. और उस पुस्तक में उन्होंने 12 विषय लिखे But हैं, the 13th thing he did not write it. लेकिन जो 13वीं बात थी उन्होंने उसमें नहीं लिखी। He said because it's so personal to him. उन्होंने ऐसा कहा कि वो 13वीं जो बात थी उनके लिए बहुत ही निजी थी। It was so personal that he didn't show his wife also. वो इतना निजी था उनके लिए कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी इसके विषय में नहीं बताया। I believe God is going to do something right now. और हम विश्वास करते हैं कि इस समय परमेश्वर कुछ तो कार्य His करेगा। ministry impacted many servants of God, उनकी जो सेवकाई परमेश्वर है बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित like की। R.W. Shambach, R.W. शंबक जी, Dave Robertson, डेव रॉबर्टसन even जी, Catherine Kuhlman, she writes, was impacted by his ministry. कैथरीन कुलमैन जी भी इनके द्वारा प्रभावित हुई। Such a great man of God. इतने महान परमेश्वर के दास, When he prayed, जब उन्होंने प्रार्थना people की, would rise up from wheelchairs. You can see it on the YouTube. आप YouTube पर देख सकते हैं कि लोग जो व्हील चेयर में थे वो उठ खड़े हुए। Wonderful man of God. परमेश्वर के अद्भुत व्यक्ति। I believe God is going to touch many of you. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छूने God is वाला going to है। bless many of your homes today. परमेश्वर बहुत सारे लोगों को घरों को आशीष देने If वाला you है। believe this, shout a hallelujah, somebody. यदि आप विश्वास करते तो कोई तो कहे हालेलुया। Come on, let me hear you. मैं Hallelujah. आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, Share हालेलुया। this. Come on, people, share this. लोग इस ब्रॉडकास्ट को शेयर If करें। this is blessing you, share it right now. अगर ये आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें। And you see, so you have a desire. आपके अंदर एक इच्छा है। So we understood first thing, what is the crossover? तो पहली बात हमने समझा कि ये क्रॉस ओवर या पार करना We क्या है। understood two crossovers, the physical crossover and the spiritual crossover. हमने दो भाग देखे जो कि शारीरिक पार करना और आत्मिक रूप से पार करना। And we saw that how sanctification is a prerequisite to the crossover. और देखो शुद्धिकरण ये क्रॉस ओवर या पार करने से पहले क्यों जरूरी है, So important. बहुत ही जरूरी The है। third thing we saw, तीसरी बात जो हमने that how देखी sanctification impacts our crossover. और कैसे ये शुद्धिकरण या पवित्रकरण हमारे जीवन को प्रभावित करता The है। degree of your sanctification जितनी गहराई से आप पवित्र या शुद्ध होते हो is the level of your crossover. तो उतना ही आपका पार करने का स्तर होता How है। many of you say amen to that? कितने लोग कहते हैं आमीन। Hallelujah. Hallelujah. I want you to do something. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें। Tomorrow's day, कल के दिन I want you to spend time in prayer. आप प्रार्थना में समय बिताएं। You see, in the days of Noah, देखो नोआ के दिनों में people were eating, drinking, and having fun. जो लोग थे खाते पीते थे और मजा मस्ती करते When थे। it was time to seek the Lord, जब समय था परमेश्वर को खोजने का, they were reveling in all these things. वो इन सारी बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। God gave me prophecies for 2023. परमेश्वर ने 2023 के लिए मुझे भविष्यवाणी दी है। You must listen to this man of God. Listen to the voice of the Spirit speaking to you. जो परमेश्वर के जन बोल रहे, जो परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा बातें करी, आपको उसको सुनना है। Hallelujah.